3R सर्किल समापन समारोह सर्वसम्मति से सभी देशों की सहमति से घोषणा पत्र जारी होगा, जिसे जयपुर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आने वाले 10 साल तक इसी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा, जयपुर घोषणा पत्र के नाम से। हालांकि यह स्वैच्छिक है। एक और बड़ी उपलब्धि C3 अर्थात सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलिटी है, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का एक वैश्विक मंच बनेगा। देखिए सबकी सहमति से, सभी देशों की सहमति से हम प्रकृति को कैसे बचाएं, आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी चिंता इस बैठक में की गई है। और सभी देशों के सुझावों के आधार पर जयपुर घोषणा पत्र जारी हुआ है। कैसे जो था ना, ये कैसे सबको 3 दिन पहले भी था, ये कैसे में क्या चीज वो पूछा था। जयपुर डिक्लेरेशन के बारे में बता दीजिए, कुछ मेन पॉइंट हो वो बता दीजिए। देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया आप लोगों के सामने में, जो आप लोगों ने सुना, और सबकी सहमति से ये जयपुर घोषणा पत्र जारी होगा। सर, क्या जयपुर डिक्लेरेशन अभी तक क्लियर नहीं है? नहीं, क्लियर है, क्लियर। और कितने देश इसमें शामिल हुए, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। जयपुर डिक्लेरेशन कई बार सुन लिया हमने, लेकिन इसमें अभी तक देखिए 24 देशों ने फिजिकल इस पर पार्टिसिपेट किए, बाकी देशों के द्वारा वर्चुअल इसमें जोड़ा गया। और सबकी Let me add 31 countries have been consulted over the last 2 years. The Jaipur Declaration, and it is a 10-year declaration. And the जयपुर डिक्लेरेशन के की पॉइंट्स बता दें आप, की पॉइंट्स में क्या क्या चीजें, बस उसमें आप लोग फोकस करने जा रहे हैं। 35 कंट्रीज या 38 कंट्रीज वो इसके सहमति है। the key point of the Jaipur Declaration. The key point of the Jaipur Declaration is it aims to create a collaborative approach among the governments, among the countries, between the governments and the private sectors. It's a very multi-collaborative perspective of the Jaipur Declaration, and it has 13 goals, and the goals cover many of the emerging waste streams like plastics, construction and demolition waste, and many other waste streams, that how we can actually promote the circular economy to minimize the waste streams, not only minimize the waste streams, and also minimize the demand, our demand on the virgin raw materials, because the natural resources are finite. We need to sustainably use them, and we need to sustainably preserve them for our future generation. I am sure this Jaipur Declaration is an important instrument, important policy instrument to help countries towards that sustainability. सर, जैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई जगह पे जब इस तरीके के डिक्लेरेशन होते हैं तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान होता है। क्या ऐसा भी कुछ आप लोगों ने किया है जयपुर डिक्लेरेशन के माध्यम से कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के 10 साल की पॉलिसी बनी है, अगर कंट्री सहमति जताती है, क्या उस पर कुछ मतलब आप लोग करेंगे, गाइडलाइंस बनाए? You see, first of all, Jaipur Declaration is a voluntary, legally non-binding document. So it is up to the countries how they implement it. If you see, this document has actually 3 parts. The goals parts, various goals, 13 goals, and also a number of suggestions, the guiding suggestions, how the countries can implement some of the goals. And if you see some of the goals, there are some economic instruments, there are some penalties, there are some, the legal instruments. It depends on how the countries will implement all these things. So it is a guiding framework. So it depends on the cities and countries how they translate the Jaipur Declaration into local actions. It involves many other penalty measures, etc. Next, actually this was the 12th forum, as you know. The next forum is supposed to be held next year. So we are still working out the next host. We were expecting to make an announcement here, but we couldn't make it because the host country is still negotiating, because there's a lot of processes there. They need to obtain the permission of their Prime Minister, the heads of the states,
to host the forum, like exactly what we did in India, how we came to India. A lot of negotiations are behind that. So we couldn't do it here, unfortunately. Thank you, everyone. मंत्री जी, सीएम को जयपुर की भूमिका पर एक दो चार शब्द बोलते हैं। देखिए, मेजबानी करना एक बड़ी बात है। विश्व के 185 मेहमान यहाँ पहुंचे थे मेजबानी करना, और हमारे देश की तो संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो ये अतिथियों का स्वागत सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। और सिटीज 2.0 में हमारे इस शहर जयपुर और उदयपुर सम्मिलित है, राजस्थान के दोनों शहरों को इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में उसका परिणाम अच्छा रहेगा और हमारा जयपुर एक सुंदर, एक स्वच्छ शहर के रूप में आप सब लोगों के सहयोग से, आप सबकी मदद से नजर आएगा। देश के ऊपर निर्भर करेगा तो हमारा देश अडॉप्ट करेगा इन की पॉइंट्स को। बिल्कुल सबकी सहमति से बनाया गया है, जिसमें अपने अपने देशों का सब इशूज रहता है, सबके विचार जान करके, सबके मंथन करके बनाया जाता है। सब अपने अपने विषय रखते हैं और अंतिम निर्णय वही होता है जो सबकी सहमति होती है। थैंक यू, थैंक यू सर। आज आप जयपुर में ही अभी निकल रहे सर? जयपुर में ही हैं आज? मैं निकलूंगा भाई साहब। मंत्री जी छोटी सी बैठक है। हाँ सर, आइए उधर से निकल जाइए भाई साहब। आपको मुद्दे सारे आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, किन चीजों को यहाँ पर मंथन करने के बाद में अब धरातल पर उतारा जाएगा, राजस्थान के शहरों में उतारा जाएगा, किन चीजों को? देखिए, ये 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई, इसका मूल मकसद था बेहतर पर्यावरण, न्यूनतम प्रदूषण, खुशहाल धरती, सबके लिए शुद्ध प्राणवायु और शुद्ध पेयजल, और इन सबको नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों और केमिकलों का न्यूनतम उपयोग, स्वच्छता, और स्वच्छता में सारा आ गया कचरे का निस्तारण और उसका रीयूज। तो इसमें जितने प्रतिभागी थे उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए हैं, अपने अपने नवाचारों के बारे में चर्चा की है, और उसी सब को समाहित करते हुए जयपुर घोषणा पत्र जारी होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी से हमें मेजबानी करने का अवसर मिला, उनसे सीखने का अवसर मिला, और आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आम जन के बीच पर्यावरण की महत्वता, प्रदूषण से होने वाले नुकसान, कैसे न्यूनतम प्रदूषण हो, कैसे सफाई हो, कैसे पुरानी चीजों का दोबारा उपयोग हो ताकि कचरे के रूप में वो परिवर्तित नहीं हो, इन सब बातों के बारे में आम जन तक जानकारी पहुंची है। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे जयपुर सहित प्रदेश की आम जनता में जागृति आएगी, जिस प्रकार इंदौर और सूरत और हमारे डूंगरपुर के नागरिकों में आई है। और हम इस 3 दिवसीय गोष्ठी के माध्यम से जो उद्देश्य था आम जन के सहयोग से मिलकर पूरा करेंगे। उदयपुर और जयपुर 2 स्मार्ट सिटी मिले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम भी इंदौर और सूरत की तरह दोनों शहरों को सर्वश्रेष्ठ सफाई में आगे ले जाएंगे। सारे के सारे जो 100 करोड़ रुपए एक शहर को मिले हैं, उससे जो कचरा है, उस कचरे से कैसे हम मीथेन गैस,